Okay. Okay. Welcome back to the fifth Community of Practice session. We had a very fruitful workshop last month, and we have been laying out the roadmap of CodeStack since then. And one of the important insights that came out is to understand the entire process of creating DPR and then taking it to the Gram Sabha, tracking the entire process. So we'll be discussing more on that today. We can have a very quick round of introduction since it's our first COP after the workshop. So if there are any new partners, I think it would be great if we can introduce each other. So anyone who would like to go? I see some of you are new, so it will be great if you can come forward. Hello. Hello, Satya ji. Hello. हाँ जी. Yeah, namaskar. I am Satya from Seva Jagat, Kalahandi, Odisha. Yeah. We are living landscape partner. Thank you. Hello, I am Tanka. Good morning to all from Seva Jagat, Kalahandi. हेलो, मेरा नाम जाज्ञसेनी है, मैं सेवा जगत में काम करती हूँ. Hello, good morning. Myself Sharendra Kumar Pradhan. I am from Foundation for Ecological Security Angul. Hi, this is Ranchita. I'm from Harsha Trust. Thank you. Good morning. Hi, good morning to all. I am Abhishek from Sevak Sundargarh. Hi, my name is Prayag. I work at Asar Social Impact Advisors in the Strategic Communications team. We're also a living landscape partners under Common Ground. Good morning to all. My name is Sunita. I am from Seva Jagat Kalahandi. Good morning to all. Myself Amit from Seva Jagat. Good morning to all. मेरा नाम विपिन कुमार, हम प्रधान से एनआरएम एक्सपर्ट होता टीम. Good morning to all. Myself Dikon Deo, Foundation for Ecological Security Angulu. Good morning everyone. My name is Shubham and I am from Badlav Foundation. Good morning to all. Myself Savita Sunani from Seva Jagat Kalahandi. Hi everyone, my name is Raju from MSSRF Jaipur. Hi, myself Jagan from FES Anugul. Hello, good morning to you all. I am Subhrit Sahu from Dhenkanal FES. Good morning. Myself Shankar Sana Seva Jagat Kalahandi. Good morning everyone. Myself Barsha Sahu from Sevak Sundargarh. Good morning everyone. Myself Savitri Raut from Sundargarh Sevak. Good morning to all. Myself Santoshi Bag from Sevak Sundargarh. Good morning all. Myself Rasmirikha Patel from Sevak Sundargarh. Good morning to all. My name myself Haripriya Naik from Sundargarh, Sevak Sundargarh. Good morning to all. Myself Pranabandhu Pradhan, Foundation for Ecological Security Anugul. सभी को जोहार. My name is Prakash Dutta. I am from Avyakti Foundation, Giririh. Hi, good morning to all. Myself K. Murali Krishna from Team Koraput, FES. Good morning to all. Myself Aarti, FES Dhenkanal. Namaskar. Myself Vinod Singh from Support, Hazaribagh. सभी को जोहार. मैं आनंद कला मंदिर से.
सभी को नमस्कार। मैं प्रणव, एफएस ढेंकानाल। Good morning, all. Ashish from Kalamandir. Okay, I think we are almost done. Okay, so it's great. I think we have a lot of representation from each organization. So it will be good to hear different perspectives from the same organization on the DPR process. So I'll just, can you all see my screen? Yes. Okay, great. Okay. Right. So, like I said, we had a wonderful workshop last month, and one of the key insights that emerged was understanding the entire DPR process, because we spoke about sustaining the landscape stewardship model. And so it becomes important to understand what is the role of a steward beyond demand collection. So how do they take it forward? How do they forge relationships with the BDO, with the panchayat? How is the entire process tracked? How are demands prioritized? So these are some open discussion pointers for today. In this the month of Jan, we had been reaching out to some of you to understand this process more. So we reached out to FES, support, Gram Vani, Bus Women, Uthan. And what I'll do is I'll share key insights from their experiences and then open the floor for other partners. Give me a second. I think there are more people who are waiting in the room. Right. Okay. Right. So some of the key insights that we gauged from our interaction was that the influence of every organization in the sense of presenting the DPRs and taking them forward in the Gram Sabha varies from organization to organization. But beyond Gram Sabha, we found it to be generally weak in the sense that partners would attempt their best to present thorough DPRs at Gram Sabha meetings. But what happens after that, it is not very formally tracked, or if the organization has forged relationships with ward member or Mukhia, then they're also able to present the DPRs to the BDO, and so the influence is more. But it varies. So we also want to understand some strategies on how we can strengthen this entire process. Right. The other thing is that the timeline for review of demands by the Gram Sabha also varies, right? And the funds are released often in a phased manner, depending on the prioritization of the work that's done or the seasonality of the work. So it may depend on budgets, in the sense that in some locations there could be a threshold that below which all the demands have an easy chance of being approved, and beyond that it varies. Similarly, it can also depend on the ongoing scheme. So if the state is mandated to, let's say, propose open wells, so those open wells demands will get approved quicker. Similarly, like I said, it's also based on seasonality, so for bonds may not. So we want to understand this entire I mean, it then becomes important, right? That how are the demands prioritized by the communities themselves? How are they ordered in the DPR? So that when a mapping is done at the Gram Sabha level, there could be a prioritization, not just top down, but also bottom up. So these are some of the key insights that we had, and I'll now open the discussion for other partners. I'll maybe just stop sharing.
Yeah, so I will now, it will be great if we can hear from other partners how they take the DPRs forward. Um, how does it मैडम look मैम like? मेरा क्वेश्चन है हाँ जी, मैम हाँ जी, हेलो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा थोड़ा उसका हिंदी बोलते ना थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलते हैं ना हिंदी मैं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी थोड़ा सुनते हैं एक सेकेंड, आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, मैं मोटा मोटा ये कह रही थी कि हम इस जनवरी के महीने में हमने 4-5 अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से बात की, एफईएस से बात की, उत्थान से, बस वुमेन से, सपोर्ट से, ग्राम वाणी से, उनके एक्सपीरियंस से जानने के लिए कि वो डीपीआर को कैसे आगे लेके जाते हैं। तो कुछ कुछ इंसाइट्स तो निकल के आई, वो ये थी कि ग्राम सभा में जो अपने लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट ट्राई करती हैं कि वो डीपीआर प्रेजेंट करें। काफ़ी बार जो ग्राम सभा के अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं वो भी एसोसिएट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ताकि जब वो डीपीआर आगे रखें तो एक कम्युनिटी ट्रस्ट और मुखिया का ट्रस्ट दोनों का साथ में आ सके। अम, लेकिन ग्राम सभा के बाद, वहाँ मीटिंग में प्रेजेंट करने के बाद क्या प्रोसेस रहता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। बहुत बार ग्राम सभा के बाद पंचायत लेवल पे, बीडीओ लेवल पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता। अम, तो आज की डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि अ, पूरा प्रोसेस कैसे ट्रैक किया जाता है ग्राम सभा में प्रेजेंट करने के बाद, और डिमांड्स की प्रायोरिटाइजेशन कैसे की जाती है। क्योंकि एक और चीज़ जो निकल के आई थी वो ये थी कि जो डीपीआरस ऑर्गेनाइजेशंस दे भी देती हैं, उसके बाद भी काफ़ी बार जो किस वर्क के लिए फंड एलोकेट करना है ये काफ़ी वेरी करता है, और हर एक लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। कई जगह बजट देखा जाता है, कभी स्कीम्स के बेसिस पे अलग अलग हो सकता है, सीजनैलिटी के बेसिस पे हो सकता है कि अगर एक ही डीपीआर में काफ़ी सारी डिमांड्स आई हैं, तो अगर मानसून का सीज़न है तो प्लांटेशन जैसी डिमांड बेटर सूटेड होगी उस सीज़न में। फार्म पॉन्ड्स में क्योंकि पानी भर जाएगा तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो हाँ, हाँ, तो ये एक दो चीज़ें जाननी थी। अम, अब मैं एक बार स्क्रीन हटाती हूँ। हाँ जी, संजना जी आप कुछ कह रहे थे। थोड़ा म्यूट करिए actually I think he is not aware about the unmute of आई हाँ, जी। तो अब मैं बाकी पार्टनर्स से उनके एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि वो डीपीआर को कैसे आगे लेके जाते हैं, ब्लॉक लेवल तक कैसे लेके जाते हैं, और कैसे हम देख सकते हैं कि पूरे प्रोसेस में जो पंचायत है वो स्टार्टिंग से इंक्लूडेड रहे, लूप में रहे, कि जब हम डीपीआर जनरेट कर रहे हैं पूरा डेटा ड्रिवन प्रोसेस है हमारा, वो सब शुरुआत से पंचायत को पता हो, ताकि जब डीपीआर सबमिट हो तो उनको आइडिया हो कि हाँ किस प्रोसेस से बनाई गई है। तो कोई भी जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा। संजना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ पे 40 लोग हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा। मैं बोलने के लिए तैयार हूँ मैम। हाँ जी,
डीपीआर जनरेट करने के बाद और रजिस्टर भी रखे जो ग्राम सभा ने ग्राम संजीव कमेटी जी ने आप तय की। ग्राम कमेटी ने जो तय की उस रजिस्टर को भी साथ रखकर मैंने तैयार किया, क्योंकि रजिस्टर साथ कर रखना इसलिए मजबूरी है क्योंकि डीपीआर में मेरा पीसीसी जो ग्राम कमेटी जो पीसीसी रोड तय करती है वो डीपीआर में कहीं दिख नहीं रहा है। नया तालाब अगर बनाना है तो कितना कितना का कैसे बनेगा वो नहीं दिख रहा है। चबूतरा गांव में निर्माण करना है अगर डेवलपमेंट के लिए तो वो नहीं दिख रहा है। ओनली फॉर आजीविका कृषि और ये जल स्रोत के बारे में डीपीआर में लोड हो रहा है। तो अन्य योजनाओं को लेकर के मैं पंचायत समिति में जाता हूँ इसको रजिस्टर के आधार पर, और वहाँ योजना को ग्राम सभा रजिस्टर में चढ़ाता हूँ। ग्राम सभा चढ़ने के बाद ब्लॉक रजिस्टर ब्लॉक की जो मीटिंग होती है वहाँ उसको प्रस्तुत किया जाता है। अभी आज ही लेटर निकाला गया है ब्लॉक से कि जितने भी मांग की गई है ग्राम समिति के द्वारा उस मांग को 15 दिन के अंदर पूरा किया जाए। आज मेरे पास लेटर आया है मैडम आज ही कि पूरा किया जाए और उस यथावत तुरंत काम दिया जाए श्रमिकों को। तो प्रोसेस है, डीपीआर तो मददगार है, बशर्ते उसमें कुछ और संशोधन की जरूरत है ताकि सारी योजनाओं को उसमें इंपुट किया जा सके। जैसे मैं बताया ना कि मैंने पीसीसी जो रोड मरम्मती है पीसीसी का जो ग्राम समिति ने तय किया वो मुझे कहीं चढ़ाने का नहीं दिखा डीपीआर में। चबूतरा निर्माण नहीं दिखा, आवास कहीं नहीं दिख रहा, पशु शेड दिख रहा है, बकरी शेड दिख रहा है, मुर्गी शेड दिख रहा है, लेकिन किसी का आवास अगर हमको उसमें इंपुट करना हो जो इम्पोर्टेंट है समिति ने तय की वो चढ़ाने का कहीं डीपीआर में तो दिख नहीं रहा है। कॉमन कनेक्ट पर सर्वे के समय डीपीआर बनाने के समय उसको कहाँ जोड़े हम, उस पर हमको एक बार क्लास की जरूरत है। बाकी बाकी योजनाएं तो चल रही है, प्रखंड उसको स्वीकृति दी है। ठीक है, ठीक है। संजीव जी आप कौन सी संस्था से हैं? हम अभी व्यक्ति फाउंडेशन से हैं, गिरिडीह से। अभी ठीक है, अभी देवी प्रखंड में काम कर रहा हूँ। ओके ओके। ठीक है, और कोई जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ बोलना चाहते हैं इसमें मैडम। हम कलाहंडी जी सेवा जगत से बोल रहा हूँ। तो ज्यादातर जी जो हम प्लानिंग विलेज लेवल में जो प्लान भी आ रहा है जितना भी जो भी प्लांट है या रोड हो प्लांटेशन तो उसको सब प्लान को हम क्या करते हैं कि ग्राम सभा के उनको पारित कर देते हैं, मतलब अप्रूव करके ग्राम सभा उनको भेज देता है कि ब्लॉक लेवल को। तो ब्लॉक लेवल ने जब भेज देता है उस हिसाब से ब्लॉक लेवल ने उनका डीपीआर ब्लॉक्स जो टेक्निकल जो टीम है इस हिसाब से उनको लेके एक डीपीआर प्रस्तुत करते हैं। तो हम सब प्लान को ग्राम सभा अप्रूव कर देता है करके जितना भी वर्क साइड प्रायोरिटी बेसिस में जो भी काम नीड है गांव के लिए एनआरएम के लिए हो कि लेबर के लिए हो जो भी काम जितना भी रोड टैंक प्लांटेशन जितना वगैरह काम को जितना गांव हिसाब से जो पल्ली बोलते हैं ना पल्ली हिसाब से जो काम आता है उस हिसाब के ग्राम सभा में एक कंसोलिडेटेड करके उनको ग्राम सभा भेज देता है जो पंचायत समिति को। उस जब पंचायत समिति को जाते हैं वहाँ पर एक प्रायोरिटी बेसिस में उनको जो टेक्निकल टीम का जो पंचायत में भी जो रहता है और उस हिसाब जो अभी जो है ना उनको साथ बैठ के एक डीपीआर उनको प्रोजेक्ट में जो प्रोग्राम में क्या क्या होगा क्या बजट कितना होगा कितना लेंथ होगा जो भी काम हिसाब से उनका लेबर कस्ट कितना मटेरियल कस्ट कितना होगा इस हिसाब से एक डीपीआर प्रस्तुत करते हैं वो उस हिसाब से
तो फेज वाइज उनको काम धीरे धीरे फेज वाइज काम एलोकेशन होता है, उनका वर्क सेट कोड जनरेट करके काम शुरू होता है, हाँ अप्रूव करके। तो इसमें मोटा मोटा आपके अनुभव में सारी जो डिमांड रखी जाती हैं वो सब अप्रूव होती हाँ हाँ है या किस प्रायोरिटाइजेशन कैसे करी नहीं, जाती है? पहले तो पॉलिस सभा में बैठ के जितना भी काम आगो उनका लिस्ट आउट होता है। तो इस साल में 2000 मान लो कि 2025-26 में क्या का काम की जो अभी हम कर रहे थे कि विजन प्लान जो 2030 को क्या करेंगे, गांव में क्या क्या डेवलपमेंट काम हो सकता है और आने वाला दिन में होगा। तो एक लिस्ट आउट होता है, लिस्ट आउट करके कुछ काम को प्रायोरिटी बेसिस में ग्राम सभा अप्रूव करता है। तो हम पहले इस साल में क्या क्या काम करेंगे, दूसरी साल में क्या करेंगे, इस हिसाब से उनको प्रायोरिटी बेसिस में एक लिस्ट आउट करते हैं। लिस्ट आउट करके सब काम को ग्राम पंचायत क्या करता है, जो ग्राम सभा बैठते हैं उस हिसाब से उनको भेज देते हैं हमारा ब्लॉक ऑफिस को, जो पंचायत समिति को। पंचायत समिति में जितना भी काम होता है उनका जो लेबर बजट के हिसाब से देख के, तो वहाँ पर जो हम जो टेक्निकल टीम बैठ के प्रोग्राम टीम बैठ के एक डीपीआर प्रस्तुत करते हैं। तो जो काम भी पहले प्रायोरिटी बेसिस है, इसको रोड बनाना है पहले या सीसी रोड होना, तो मिट्टी का काम कितना, मिट्टी में लेबर बजट कितना होगा, बाद में 6 महीना में उनको मुरूम पकाना है, इस हिसाब से उनको प्रायोरिटी बेसिस में एक पूरा उनका बजट प्रस्तुत करते हैं। कि नहीं तो चेक डैम है, चेक डैम में उनका साइड वेरिफिकेशन करके हम तो बजट पहले नहीं दे सकते, नहीं उनका एक नाम रहता है कि उसी साइड में एक चेक डैम बनाना है। तो जब चेक डैम बनाना है तो जो टेक्निकल टीम विजिट करके देखे वही साइट पे उनका सही है कि नहीं। तो उस हिसाब से जब विजिट करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, बाद में उनको उनका बजट हिसाब से उनका 5 लाख की 10 लाख होगा कि ज़्यादा होगा, तो वहाँ ग्राम पंचायत में फंड से होगा कि पंचायत समिति फंड से होगा, कहाँ कौन सा फंड में हो पाएगा। तो इस हिसाब से उनको डीपीआर करके जो वेरियस जो डिपार्टमेंट है, मान लो कि पंचायत प्लांटेशन वर्क है, इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा कि टेक सॉइल कंजर्वेशन करेगा कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करेगा, उस हिसाब से उनको डिवाइड करके पंचायत ब्लॉक साथ से उनको डिस्ट्रिक्ट के भेज के इस हिसाब से जो प्रायोरिटी बेसिस हिसाब से जो दिया जाता है, लिस्ट आउट करता है, उस हिसाब से फेज टू फेज काम शुरू होता है। तो जो काम इस साल में नहीं हो सकता है तो दोबारा इसको हम फिर ग्राम सभा में उनको भी फिर डालना पड़ता है बाद में। तो जो सारे सीआरपीज है वो पूरा लूप में रहते हैं जब ये पूरा प्रोसेस चलता है? हाँ हाँ मतलब ग्राम सभा में प्रेजेंट आप पूरा लूप में रहते हैं कि जब हाँ जो बजट हाँ मैपिंग होती है? हाँ, हम लुक में रहते हैं पूरा। ओके ओके, तो आपको पता होता है कि कौन सी डिमांड किस फेज में हाँ वो हो रही हाँ है, अप्रूव वर्क हो रही है? जनरेट ओके। कोडिंग कौन कौन सा कितना काम था, हाँ वर्क कोडिंग हाँ। किसके का आएगा, बजट कितना है, ये सब हम पूरा हम्म। देखते हैं। और एक एक चीज है, जी उसमें ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा, जी। जो डॉक्टर ने बोला। तो उसमें एक है कि अभी कुछ नया प्लानिंग भी आ रहे हैं, पहले से जैसे ओनली रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देते थे, अभी हम्म कम्युनिटी लेवल में दूसरा जो कंस्ट्रक्शन, जो लाइवलीहुड, जितने लाइवलीहुड है, टॉप टू वैली ट्रीटमेंट के टोटल लैंडस्केप प्लानिंग के हिसाब से वो थोड़ा ध्यान देते, इंक्लूडिंग कहाँ प्ले ग्राउंड बनाना है, कुछ दूसरा बच्चे के लिए भी हो, दूसरे एवन है कुछ इनोवेटिव प्लानिंग भी वो गांव में अभी ऐड किए हैं। ऐसे नहीं सब गांव तो नहीं किए, बट जितने हमारा पकड़ है, एटलीस्ट वो गांव तो बहुत सारे चीज, नया नया चीज वो ऐड किए गए हैं। बट उसको जो डीपीआर प्लानिंग, तो डिटेल जो प्लानिंग होगा उसका टेक्निकल प्लानिंग के साथ जैसे बोल रहे हैं ना, तो उसके बाद फिर मालूम पड़ेगा कितने होगा। अभी तो 5 साल के लिए एक प्लानिंग बना, जैसे आदि कर्मयोगी अभियान के नाते, तो 5 साल का एक प्लानिंग बना और 2030। तो फिर बट फेज वाइज उसको वर्कआउट करेंगे उसको।
सत्य जी, आप ये कुछ बोल सकते हैं उस पे कि आपको सपोज कि प्लेग्राउंड बनाना है या ये सब कुछ भी बनाना है, तो उसमें जो इनपुट्स क्या वैल्यूएबल हो सकते हैं जिसे देखकर अच्छा प्लेग्राउंड की लोकेशन डिसाइड हो सकती है, उसके लिए प्लानिंग में हेल्प मिल सकती हो। What is it? Meeting? हेलो। यस, हेलो। हाँ, आपको क्या बोल। आवाज आ रही थी? हाँ हाँ, आ रहे बट मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। हाँ, कि क्या इनपुट्स आपसे मिल सकते हैं या फिर आप अभी क्या बता सकते हो, अगर सपोज किसी को ये बनाना हो, आपको प्लान करने में हेल्प करनी हो, तो उसमें क्या क्या इनपुट्स इम्पोर्टेंट रहेंगे प्लेग्राउंड या कोई भी कंस्ट्रक्शन वाली चीज डिसाइड करने के लिए, या बाकी जो भी आपने डिस्कस की उसमें डिसाइड करने के लिए जो आप बोल रहे हो, तो उसको टेक्निकली कैसे अच्छे से डिजाइन कर सकते कि वो आपके लिए वैल्यूएबल डिसीजन में हेल्प कर सके। हाँ, नहीं, एक तो चीज है कि पहले एक प्लानिंग प्रोसेस होता था ना, तो गवर्नमेंट ऑफिसर जाकर बैठ जाते तो इतना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता था। क्योंकि हम लोग देखे कि बहुत सारे साइट में कंस्ट्रक्शन हुआ है जो वो सस्टेनेबल अप्रोच में नहीं हुआ है। बहुत सारे टैंक हुआ है जिसका आउटलेट प्रॉपरली नहीं हुआ है, इनलेट भी प्रॉपरली नहीं हुआ है, उसका कितने टॉप लेवल में ड्रेनेज वाटर आता है तो उसको भी आधार पर नहीं करते, जस्ट ऐसे बना देते, उसको आउटलेट थोड़ा सा बना देते, बट उसका कितना पानी आएगा, कितने पानी ड्रेनेज में जाएगा, अभी थोड़ा उसका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा हम लोग इंश्योर करते हैं। बस टेक्निकल आज कंसर्न, कभी कभी जगह पर जीपीएस प्लानिंग जरूरत होता है, तो आजकल हम लोग यंग यूथ जो वॉलेंटियर है उनको थोड़ा ट्रेनिंग दिया है, तो उस वो लोग भी थोड़ा सा उसको मालूम होता है कि कैसे। तो उसमें उन लोग को मालूम होता है कि थोड़ा सा कैसे प्लानिंग, अभी जैसे एफआरए में हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग दिया है यंग जनरेशन को, तो वो लोग थोड़ा सा उसको डिमार्केशन देता है, और कौन सा ड्रेनेज लाइन में एलवीएस एलवीसीडी बनाना है, क्योंकि वो उनको मालूम होता है कि ड्रेनेज लाइन प्रॉपरली होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा जरूरत होता है। बट यंग जनरेशन को थोड़ा और टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत जरूरत होता है कि हम लोग को थोड़ा देंगे तो खुद वो प्लानिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और प्लेग्राउंड पर जो सिलेक्शन है वो तो कम्युनिटी सिलेक्शन करता है, कभी कभी ये बोलते हैं कि नहीं यहाँ गवर्नमेंट साइड नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है, बट कम्युनिटी, जब हम देखते हैं जब कम्युनिटी सिलेक्शन करता है तो वहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जहाँ अच्छा होता है तो वहाँ प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है। तो अभी थोड़ा सा वो एडिशन वगैरह किया गया है कि हम बच्चे के लिए भी देखना चाहिए कि गांव में कैसे होना चाहिए, कौन सा प्लांटेशन साइट, अब कौन सा प्लांट बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले प्लांट से प्लांटेशन साइट करते थे तो वो जो एफआरए लैंड के ऊपर करते थे, ये मना किए कि नहीं, अभी एफआरए लैंड जो क्लेम हुआ है उसमें प्रोसेस आप नहीं कर सकते जब तक वो टाइटल नहीं मिलेगा। तो ये चीज को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है थोड़ा सा इंश्योर। थैंक यू सत्य जी। ठीक है, थैंक यू। तो और मुझे एक और चीज़ ये पूछनी थी सत्य जी कि जो प्रायोरिटाइजेशन होती है उसमें कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि हर एक विलेज से फिक्स्ड नंबर ऑफ डिमांड्स या इतने परसेंटेज कम्युनिटी डिमांड, इतने परसेंटेज इंडिविजुअल डिमांड, ऐसा कुछ क्राइटेरिया भी होता है, या वो मोस्टली जो भी उन्हें टेक्निकल फिजिबिलिटी लगती है उसके बेसिस पे और फंडिंग के बेसिस पे होता है? हेलो, हाँ जी, अतुल जी क्या बोल रहे थे? मैं पूछ रही थी कि आप जो प्रायोरिटाइजेशन होती है डिमांड्स की उसके लिए कोई एक ऐसे फिक्स्ड क्राइटेरिया भी रहता है, जैसे आप कहते थे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है तो उसे एनकरेज किया जाता है, तो ऐसा कुछ रहता है कि इतनी कम्युनिटी डिमांड्स, इतनी इंडिविजुअल डिमांड्स हर एक गांव से एक्सेप्ट होंगी, या पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिमांड्स हर एक विलेज से लेनी है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रहता है, या मोस्टली वो विलेज टू विलेज बेसिस पे डिपेंडेंट होता है?
नहीं नहीं, वो तो विलेज टू विलेज के हिसाब से डिपेंड रहता है। ओके पहले से क्या होता है ना, ये एक पहले से ब्लॉकिंग माइंड में जाते थे गवर्नमेंट पीपुल जो जाते थे उनको फैसिलिटेशन करने के लिए जो, तो उसमें क्या था ना, सिर्फ एक दो चीज में ध्यान देते थे। अभी थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी वो जो कम्युनिटी लीडर भी हो उनको हम जब ट्रेनिंग देते हैं, हम तो रेगुलरली हर जगह जा नहीं पाएंगे, एक दिन में मीटिंग होता है हर जगह पर। तो उसमें हम लोग को पहले से ट्रेनिंग लीडर को ट्रेनिंग देते हैं कि एटलीस्ट ये चीज को, आपका जो गांव में जो जरूरत है वो टॉप टू वैली है, महिला के लिए क्या हो सकता है, बच्चे के लिए क्या हो सकता है, और दूसरे जो लाइवलीहुड का जितने ये है ड्रेनेज लाइन जो ट्रीटमेंट है, जहां आपको हिस्ट्रिकल एनालिसिस करके आपका कौन सा प्रॉब्लम रहता है, माने लाइवलीहुड जो बारिश दिन में जो जितना डैमेज हो जाता है, तो वो चीज को थोड़ा सा अभी ध्यान में देख करके गांव के हिसाब से अलग अलग प्लानिंग होता है। अप्रूवल तो वो लोग प्लानिंग में सब डाल देते हैं कि हमारा ये चीज जरूरत है, बट वो जो टेक्निकल टीम करने का टाइम में वो प्लानिंग जो करते हैं तो उनका एक बजट लिमिटेशन रहता है, तो फेज वाइज वो कार्यक्रम होता है, क्योंकि बजट तो हर चीज में नहीं आ पाएगा। अपन अगर अभी ये 1 करोड़ का बजट कर देंगे तो एक गांव में 1 करोड़ बजट तो नहीं हो सकता है, प्लानिंग रह जाएगा, बट टेक्निकल जो रहता है तो बाद में वो थोड़ा सा एक के बाद एक बात करेंगे। बट कम्युनिटी पहले प्रायोरिटी करेगा तो तब वो गवर्नमेंट भी थोड़ा प्रायोरिटी दे सकता है उसमें, नहीं तो फिर वो ही रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर रह जाता है ना, मिट्टी डालो और मिट्टी फिर धो गया, काम खत्म हो गया, तो ये चीज नहीं रहना है। एटलीस्ट नया चीज जो इनोवेटिव चीज वो थोड़ा एडिशन होना चाहिए, तो ये चीज थोड़ा सा अभी आया है, बट ये गांव के हिसाब से डिफरेंट रहता है। और इसको भी फाइनल और जीपीडीपी में भी अप्रूवल होता है, जो ग्राम पंचायत में जो डीपीडीपी प्लानिंग में भी वो भी अप्रूवल होता है। ओके, तो पूरे प्रोसेस में कोई चैलेंजेस जो आपको लगता अभी भी स्टिल चैलेंज है है, कि क्योंकि उनको कैपेसिटी बिल्डिंग जिस बहुत पे और जरूरत ध्यान है। देने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि वो कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे ना आपको बोलना, टेक्निकल टेक्निकल वी हैव टू ट्रेन द यंग जनरेशन ऑफ द फ्रॉम द विलेज प्रॉपरली, इंस्टेड ऑफ आवर ओनली स्टाफ और वॉलेंटियर। जो हमारा जो कैटलिस्ट है, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप यू जस्ट क्रिएट द लीडर फ्रॉम द विलेज एंड गिव द ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो they should participate properly and actively, and then they can ensure that at least the planning process is very participatory and sustainable with a sustainable approach. फिर भी उसमें कमियां हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बोलते हैं कि इसमें 100 गांव सब चीज हो गया, ऐसे 2 गांव अच्छा हो गया तो और 5 गांव भी थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो गया, क्योंकि जो दिन मीटिंग करते वो टाइम में बहुत सारे लोग भी नहीं रहते, तो थोड़ा वहां भी लूज हो जाता है, तो वही चीज उसमें होता है, तो थोड़ा सा। बट हम लोग इस बार प्लानिंग प्रोसेस में देखे बहुत सारी चीज वैल्यू एडिशन हुआ है बहुत सारे गांव में, बट थोड़ा सा स्टिल हमको कम्युनिटी का पार्टिसिपेट कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत जरूरत है। जो ग्राम साथी होते हैं कि अभी जो आदि साथी होते हैं, हम आदि साथी को ट्रेनिंग करना कोशिश करेंगे कि उसको कैसे एक्टिवेट किया जा रहा है, तो वो चीज बहुत मतलब सिर्फ सेवा जगत इलाका नहीं, हर जगह पर, जैसे हमारा उड़ीसा में हर जगह में सेवक भी है, मंत्रीपाल है, सब लोग काम करते हैं, तो हर जगह पे वैसे चैलेंज थोड़ा सा सबका होगा, तो उसको वी हैव टू ओवरटेक विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द कम्युनिटी लीडर्स, इंक्लूडिंग जीपीएस प्लानिंग प्रोसेस एंड बिकॉज नया टेक्निक को यूज करना भी हमारा कम्युनिटी लीडर भी सीखना चाहिए। आजकल सबके पास भी एंड्रॉइड फोन हो गया, तो बट दे कैन आल्सो यूज दिस एंड्रॉइड फोन आल्सो फॉर दैट। थैंक यू। कोई और जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हेलो। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं श्री सिंह सामंत, वस्का केउंझर से। वस्का केउंझर से। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा जो प्रोसेस है कोर्स स्टार्ट कर लेके जिसी गांव में हम वो प्लान कर रहे हैं, इसी गांव में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन अच्छा आता है और भी उनका कुछ नॉलेज गेन होता है, कैसे हम हमारा जो रिसोर्स है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनको हम काम के लिए प्लान दे सकते हैं। लेकिन दूसरा गांव में इसी का ऊपर भी कुछ असर नहीं है, जहां पर हम है वहां पर अच्छा असर आता है। जैसे कि हमारा अभी जो आदि कर्मयोगी हो रहा है,
इसी गांव में जाके कुछ पूछेंगे तो कम्युनिटी कम्युनिटी क्या, वो भी गवर्नमेंट जो स्टाफ से है वो भी ठीक से नहीं उनको कर नहीं पाते हैं। किसी गांव में वो बोलते हैं कि कुछ प्लान दे दो, हम उसमें डाल देंगे 5 ईयर प्लान में। लेकिन ये जो इसी गांव में वो हमारा जो कोर्स्टा का जो प्लानिंग हुआ था, इसी गांव में अच्छा से अच्छा कम्युनिटी ये प्लान को रिसोर्स ये जो एनआरएम बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा देते हैं। इसीलिए तो हमारा कम्युनिटी का जो लीडर है, जो अभी तो जो है आदि साथी है, वो सहायक भी है। एक ही गांव में 20 आदमी को चूज किया है, लेकिन उनको पता नहीं है क्या काम करेंगे वो। उनके लिए कुछ ट्रेनिंग होंगे तो हमारा जो इतना पार्टनर है अच्छा से इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। और वो जिस गांव में वो जो प्लानिंग हुआ है उनको जो पता है वो आके ग्राम सभा में बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। और भी हमारा भी जो पुराना वाला भी एनआरएम में कुछ एक्टिविटी है उसको अच्छा से भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। लेकिन हर गांव में टेक्निकल जो है ब्लॉक टेक्निकल टीम है और भी हमारा जो कैटलिस्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ट्रेनिंग होंगे तो और हम अच्छा से कुछ काम कर पाएंगे। तो सिटीश जी, आप अपना पूरा एक बार प्रोसेस बताएंगे जो फॉलो करते हैं डीपीआर बनाने का, कि जैसा आपने बोला है आप थोड़ा डेटा फोकस्ड डाटा को इसी गांव में टेक्निकल डीपीआर बनाने का करते हो। हम बात कर रहे हैं इसी हम्म। गांव में, जिस गांव में हमने प्लान किया है, इसी कम्युनिटी के साथ बात किया है। वो जो ग्राम सभा जाएंगे किसी का इसी जितना प्लान है इसी से प्रायोरिटी क्या है, वो थोड़ा पानी का ऊपर ज्यादा आता है और जो एफआरए का ऊपर ज्यादा आता है। वो एफआरए जो लैंड है इसको कैसे डेवलप करेंगे, और भी पानी का जैसे कुछ डैमेज हो जाता है, ड्रेनेज लाइन में पानी चल जाता है, इसको कैसे हम स्टोर करके रख पाता है, इसको लेके वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रायोरिटी बेसिस में। वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको रेनोवेशन करेंगे क्या, वो कुछ डेवलप करेंगे, उनका भी वो बोलते हैं। लेकिन पहले ग्राम सभा में जाते हैं तो क्या तुम्हारा गांव में क्या प्लान है, थोड़ा रोड बना दो और बोरवेल थोड़ा कर दो, ऐसा आता है। लेकिन वो जिसी गांव में वो प्लानिंग हुआ है इसी गांव में वो एनआरएम का बेस ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं और लाइवलीहुड का लिंकेज जिस काम में लिंक है इसी काम में ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। थैंक यू। ये थैंक्स। थैंक यू। हाँ जी, आई थिंक कोई और प्रदान से बोलना चाह रहे थे। जी, हम विपिन बोले प्रधान से। तो हाँ जी, इसमें विपिन आप, जी। हाँ, तो इसमें आप पूछे कि डीपीआर को कैसे ब्लॉक लेवल तक ले जाएगा, यही ना, ये क्वेश्चन जी था आपका ना। तो जैसे कि हम लोग प्लानिंग किए, प्लानिंग करने के बाद जो भी मेरा योजना आता है तो पहले हम उसमें तो कॉमन है, उसमें तो हम पहले एंट्री करवे करते हैं। उसके बाद साथ में हम एक रजिस्टर रखते हैं गाँव वाइज, उसमें हम प्लान को उसमें भी लिखते हैं प्लस में कॉमन रेस्ट में भी चलाते हैं। जैसे कि मेरा उस गांव का प्लान पूरा कंप्लीट हो गया, तो हम तीसरे दिन में उस गांव में सभी सभी दीदी दादा और जो जो उस गांव का जो मेन मेन आदमी प्रधान है, तो उसके उपस्थिति में हम लोग एक ग्राम सभा करते हैं। उसके बाद ग्राम सभा करने के बाद हम लोग जो जो भी योजना आया है, जिसका जमीन पे यानी जिसके नाम पे जो आया फलना फलना, जैसे कि उसमें योजना आया हुआ है, सबको हम पहले उसको पढ़ के सुनाते हैं कि देखिए आपका यानी आपका इसना आपका आपका इस गांव से फलना फलना आप इतना प्लांटेशन हुआ है, इतना डोबा आया, इतना लाइव स्टॉक से आया, इतना इतना आदि कुछ हुआ। तो उसमें हम लोग पहले वहाँ पे उसको सारा गांव वाले साथ हम लोग उसको पढ़ के सुना देते हैं। तो उसके बाद हम लोग एक तो उसी दिन हम लोग ग्राम सभा में उसको पारित कर देते हैं। और जब उसका अब तो फिर उसमें जब फिर उसका अगले डेट जाता है ना, जीपीटीपी, जैसे कि जीपीटीपी आता है तो हम लोग जाकर उसको जीपीटीपी में मुखिया के माध्यम से उसको चढ़ा देते हैं। और जिससे दूसरा बात है कि यहाँ पे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में शायद है
बर्जर ब्लॉक में। तो उसमें प्लांटेशन ऐसा योजना है, जैसे कि हम लोग प्लांटेशन, जैसे कि अभी तो 1 महीने के बाद प्लांटेशन का समय भी आ रहा है योजना चयन के लिए। तो हम लोग पहले उसको चयनित करके दे देते हैं बीपीओ को ब्लॉक में। तो उसके बाद वो अपना स्टाफ को, जेई को, एई को, सारा हम लोग के साथ उसका वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे भेजते हैं। तो उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी समस्या आता है तो उसमें हम लोग को बता दे, उसमें उसका लिस्ट बना देता है कि इसका होने के लायक है या नहीं, कि उसमें घर से कम से घर के पीछे होना चाहिए, और उस स्थिति में उसका पानी की समस्या क्या है। तो ये सब चीजों को देखते हुए उस योजना को पूरा पारित करता है वो, खास करके प्लांटेशन में। और बाकी जो डोबा हुआ, तालाब हुआ, और कुछ जैसे एलबीसीडी हुआ, ये सब तो उसका जो प्रोसेस है जीपीडब्ल्यू चढ़ने के बाद उसका प्रोसेस होता है। बस मेरा ही एक्सपीरियंस था। जी, थैंक यू। एक और चीज़ नितिन जी जानना चाहूंगी कि जब ये जैसे आपने पूरा प्रोसेस बताया, उसके बाद जब डिमांड्स अप्रूव हो जाती हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? मतलब जो भी बेनिफिशरीज हैं, जिनकी डिमांड्स अप्रूव हुई हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई चीज़ में सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है एक बार डिमांड्स अप्रूव हो गई तो? डिमांड जैसे कि हम लोग का सेंक्शन हो गया, कोई भी योजना उसमें सेंक्शन हो गया ब्लॉक से, तो उसके बाद जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स खोजता है, तो लगभग प्रत्येक पंचायत में हम लोग का केडर है। तो हम लोग उसी के माध्यम से जाते हैं, जैसे कि साथ में ब्लॉक स्टाफ भी जाता है। अगर उसको कोई भी समस्या होता है तो वहाँ पे हम लोग का आदमी, है, तो उस जाकर उसका सपोर्ट करते हैं। उस उसको क्या क्या चाहिए तो उसको हम लोग भी उसको लेकर के जाकर उसको जमा कर देते हैं। अब जैसे कि अब सारा सारा कुछ सेंक्शन भी हो गया, अब उसमें हम लोग अब उसको जियो टेक कराते हैं। जियो टेक के पहले तो उसका पहले बोर्ड बनेगा उसमें, तो जैसे कि आपका प्लांटेशन में सबसे पहले तो उसका जियो टेक होगा। तो जियो टेक होने से पहले उसका बोर्ड बनेगा, तो उसमें बोर्ड में क्या क्या लिखा था तो सारा हम लोग के पास उसका ज्ञान है कि उसमें क्या लिखना है। तो बोर्ड बनाने के बाद तो हम लोगों को बोलते हैं कि आपका आपका बागवानी पास हो गया है, तो अपना बोर्ड बनाइए। बोर्ड बनने के बाद उसमें जियो टेक होता है। जियो टेक करने के बाद हम लोग खुद ही जाके उसका लेआउट करते हैं। उसमें लेआउट करने के बाद उसका जो डिमांड, जो जिस जिस लेबर वहाँ पे काम करेगा, तो उसका हम लोग मेट के सहायता से उसका डिमांड निकलवाते हैं, हमारी रोजगार सेवक के सहायता से। बस। ठीक है, ठीक है। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन जी। और कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे पूरे प्रोसेस से रिलेटेड, स्पेशली कि वीडियो तक कैसे लेके जाया जाता है, डिमांड्स को कैसे ट्रैक किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटी की डिमांड्स हैं वो सामने आए, अप्रूव हों। और अगर जो डिमांड्स, अगर कोई भी पार्टनर ये भी शेयर करना चाहे कि जो डिमांड्स रिजेक्ट हो जाती हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन दी जाती है? मतलब उसको आप कैसे, जो उनके पोटेंशियल बेनिफिशियरी होते हैं, उनको आप कैसे कम्युनिकेट करते हो कि ये डिमांड अप्रूव नहीं हुई है? और ग्राम सभा से उसकी क्या जस्टिफिकेशन टिपिकली आती है आपके एक्सपीरियंस में? मैम थोड़ा फिर से बोले एक बार, तो बोले एक बार, जो अभी जो आप बोले ना, थोड़ा उसका फिर से बोले ना। जी, मैंने पूछा कि अगर कोई डिमांड, किस तरीके की डिमांड रिजेक्ट होती हैं, और जो रिजेक्ट होती हैं फिर उसके क्या रीजंस दिए जाते हैं ग्राम सभा से? आप म्यूट पर हैं नितिन जी। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि आम बागवानी है, जैसे कि उसका हम उसका डिमांड दिया ब्लॉक में, ठीक है ना। ब्लॉक तक पहुंच गया वो, तो ब्लॉक स्टाफ आया वहाँ पे वेरिफिकेशन में। तो उसमें पाया गया कि उस पेज में पानी की समस्या है।
तो उसमें पानी की समस्या के कारण उसको यानी उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो तो उसके बाद खुद हम वहाँ पे लाभों के पास जाते हैं। तो उसका जैसे कि जो जो उसका समस्या था, पानी की समस्या था, तो उसका ग्राम सभा में हम उसका पानी सिंचाई को उसमें चलवा देते हैं। उसके बाद उसका सैंक्शन करने के लिए जो उसका प्रक्रिया है, तो पहले उसका हम कुआं ही उसमें पास कराते हैं। उसके बाद अगले साल फिर उसका भगवानी पास हो जाएगा उसमें। तो हर एक जो डिमांड अगर किसी की रिजेक्ट होती है आप उसे भी पूरा ट्रैक करते हैं? जी हाँ। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू नितिन जी। और कोई जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अभिव्यक्ति से, कोई कला मंदिर से, और बदलाव से, हर्षा ट्रस्ट से? कोई भी और जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, हेलो मैडम। जी। नमस्ते, मैं प्रदीप सेवागर से बोल रहा हूँ। आप हाँ जो जी। बोल रहे कि हर प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होता है। मेरे ख्याल से कुछ रिजेक्ट तो नहीं, उसको होल्ड करके भी रखते हैं। जैसे कि अभी हम जितने भी प्लान में लैंड डेवलपमेंट के लिए दो टाइप के काम होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक कम्युनिटी होता है। तो कुछ काम इंडिविजुअल लैंड डेवलपमेंट होता है, वो एक ही नाम के फार्मर्स के नाम के या लैंड होल्डर के नाम पे, और कुछ काम कम्युनिटी के नाम पे होता है, जहाँ पर A+9 others, B+10 others, इसमें सब लोगों का काम होता है। उसका प्रोजेक्ट का 3 लाख से ज्यादा रहता है। जब इंडिविजुअल का देखें तो 50,000 1 लाख के जरूर रहता है। तो अभी वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट का सर्कुलर के हिसाब से। पहले इंडिविजुअल काम भी होता था, कम्युनिटी काम भी होता था। अभी गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर किया है कि स्पेशली MGNRGA प्रोजेक्ट के लिए कि इंडिविजुअली काम नहीं होगा। तो उसमें क्या है, उसका वर्क कोड भी हो गया है, जियोटेक भी हो गया है, लेकिन ये गवर्नमेंट का ये सर्कुलर की वजह से उसका काम वो डिमांड नहीं दे पा रहे, काम भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ऊपर से ये है कि हम इंडिविजुअल काम अभी नहीं करेंगे, सिर्फ कम्युनिटी काम करेंगे। जहां पर कम्युनिटी है, कम्युनिटी लैंड डेवलपमेंट काम है, उस काम हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल काम बिल्कुल स्टॉप है। तो उसका जियोटेक भी हो गया है, वर्कआउट भी हो गया है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो वो एक चैलेंजेस है, क्योंकि उसका प्लान अप्रूव हुआ है, जियोटेक भी हुआ है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो बीच बीच में जो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर नया सर्कुलर होता है, डिसीजन होता है, वो भी हमारा प्लान को हैम्पर करता है। हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जिसका इंडिविजुअल है वो उसको हम कैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट बना करके फिर दोबारा DPEP में शामिल करें, उसको अप्रूव करें। लेकिन हर टाइम वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार वो वर्कआउट निकल गया है, वर्कआउट जनरेट हो गया है, जिसका जनरेट नहीं हुआ है, वो इंडिविजुअल इसकी प्लान में है, उसको हम अभी कम्युनिटी प्रोजेक्ट बना करके डाल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल बंद कर दिया इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी एक चैलेंजेस है, उसको भी हम वो कोशिश कर रहे हैं, उसको कम्युनिटी लेवल करके लोगों का काम हो करके। और बहुत जगह 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 में कुछ डिपार्टमेंट का अभी ये एक सेलग्रेशन डिपार्टमेंट के जो जब प्लान हुआ, ब्लॉक लेवल में सर्कुलर हुआ कि कौन सा काम कौन कौन करेगा, तो सेलग्रेशन डिपार्टमेंट ने बोला हमको इस साल सिर्फ क्या चहला बोलते हैं उसको, फार्म के लिए ही हमको टारगेट दिया गया है, हम दूसरी काम नहीं कर पाएंगे। तो उसका भी डिपार्टमेंट में कुछ टारगेट रहता है, उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया जाता है कि आपको इस साल ये काम ही करना है। तो दूसरे काम को हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, ये हमारा इस साल का टारगेट नहीं है। तो बहुत सारे प्लान आता है गांव से, GP से भी कंसल्टेट होता है। कुछ काम GP कर पाएगा, जैसे मान लीजिए 5 लाख से अगर कम कॉस्ट का होगा तो GP लेवल में प्लान हो जाता है। दूसरा वो ब्लॉक में आता है, ब्लॉक में कंसल्टेट करके हर डिपार्टमेंट को बुला करके कौन सा काम कौन करेगा वो डिवाइड होता है। तो उसका भी डिपार्टमेंट वाइज भी ये रहता है कि हम
इस साल क्या काम करेंगे, कितना करेंगे। तो जो जो उसी में आता है वो हो जाता है, बाकी ड्रॉप रह जाता है। ये भी थोड़ा चैलेंजेस, दिक्कत हम फेस कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का जो सर्कुलर और डिसीजन के ऊपर, वो भी हैम्पर करता है प्लानिंग में, डेवलपमेंट में। थैंक यू। जी, थैंक यू प्रदीप जी। तो कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा तरीका जो आपने निकाला हो जिससे, जैसे आप कह रहे हो कि आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हो, जी तो जी उस जी पे जी। आप थोड़ा डिस्कस करोगे कि किस तरीके के कैसे वो किया जाता है, आप कैसे इंश्योर नहीं, करते हो? हाँ। हाँ, देखिए, जिसका अगर अप्रूव हो गया है, वर्क को निकल गया, उसको तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वो तो अभी होल्ड में है, उसका काम नहीं हो रहा है। जिसका अभी प्लान में है उसको हम जीपीडीपी में आप डाले नहीं, और प्लानिंग नहीं हुआ है, उसका एस्टिमेट नहीं बना है, वो काम को हम कर पा रहे हैं। 5-6 जो इंडिविजुअल जो फार्मर्स को या लैंड होल्डर को लेकर के, जिसका एक पेज में लैंड हो, उसी 5-7 आदमी को लेकर के हम कम्युनिटी कर रहे हैं। वो पॉसिबल है, वो हो पा रहा है। लेकिन जिसका वर्कआउट निकल गया है, उसका जियोटेक हो गया है, उसका हो नहीं पा रहा है। वो हम जीपी में डिस्कशन कर रहे हैं, जीआरएस के साथ और जो पीओ के साथ, सरपंच के साथ बैठ करके हमारा प्लानिंग चेंज कर रहे हैं। उसको फिर दोबारा अप्रूवल के लिए ब्लॉक को भेज रहे हैं, ब्लॉक अप्रूवल करके डिस्ट्रिक्ट को भेज रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सभी के लिए रखना चाहूंगी कि अम, अभी क्योंकि हमारे साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हैं उन सभी ने कॉमन्स कनेक्ट यूज करा है काफी हद तक। तो कॉमन्स कनेक्ट से जो डीपीआर बन के आती है, उसका आपको क्या रोल लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में रह सकता है? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? तो एक एक क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और दूसरा क्या पूरा रोल रह सकता है वीडियो तक डिमांड्स ले जाने में, हेल्प करने में क्या रोल रह सकता है? तो उस पे अगर कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहे। या डीपीआर में हम क्या आपको लगता है कि डीपीआर के फॉर्मेट में क्या चेंजेस ला सकते हैं कि आ, उसे प्रेजेंट करना ज्यादा मीनिंगफुल हो? हेलो। हाँ जी। मैम मैं जगन बोल रहा हूँ FES से, जी अनुगुण। जी हाँ जी जगन जी। मैम, मैंने जो कॉमन प्लानट में 2 जीपी का ऑलरेडी हमारा खत्म हो जाए, मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था और कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन भी है उसके लिए, और डीपीआर को कैसे आगे जाके किस किस जगह पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कि पहले तो हमने जब कॉमन प्लानट में स्टार्ट किया, एनआरएम बेस्ड डीपीआर स्टार्ट किया, तो हमारा यही था कि हम उसको थोड़ा सा ऊपर लेवल तक जाए, डिपार्टमेंट के साथ ज्यादा जुड़े रहे। इसलिए हमने डीपीआर शुरू करने से पहले वीडियो के साथ बातचीत हो चुका है। जैसे कि वो प्रेजेंट थी जलान से, वीडियो को एक प्रेजेंटेशन दिया था और सब कलेक्टर भी एक प्रेजेंटेशन दिया था। तो उसी को लेके हम स्टार्ट किया था कि इस डीपीआर में क्या क्या है, डिफरेंट क्या है। तो हम पुराना वाला तो डीपीआर बना रहे थे और बाकी गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम कर रहे थे, लेकिन ये एनआरएम डीपीआर क्यों करना चाहते हैं हम, तो इसमें डिफरेंट क्या है। जैसे कि हमने 2-3 चीज इसके बताया कि हम जो प्लानिंग में करते हैं उसको लॉजिकली हम कोई भी प्रोवाइड प्रूव नहीं कर सकते कि इस जगह में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस जगह का रिसर्च जोन है कि डिस्चार्ज जोन है, कि यहाँ पर हम नाला खोल सकते हैं, तो ऐसा वाला एंगल कहीं पे नहीं नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने इस डीपीआर में ये एंगल आ रहा था, तो इसलिए हम वीडियो को ऐसे प्रेजेंट किया। तो वीडियो भी इंटरेस्ट लिया, तो हमने 2 जीपी में काम शुरू किया। शुरू करने से पहले गांव जो पंचायत का जो पीओ, कंसर्न पीओ और सरपंच और जो भी पीआरए मेंबर का, उनके साथ एक ओरिएंटेशन हुआ, और ये जीपीडीपी को लेके ब्लॉक लेवल में भी ओरिएंटेशन हुआ था। और उस ओरिएंटेशन में हमने
एक कॉमन्स कनेक्ट को भी थोड़ा सा प्रेजेंट किया, क्योंकि 27 जीबी है पालड़ा में, हम 2 जीबी में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने उसको जो जहां पर हम काम शुरू कर रहे थे वहां पर थोड़ा सा बहुत चलेगा। फोकस किया कि इसको लेके हम आगे जाके, तो ऐसे शुरू हो गया। तो जब हम गांव में जाके काम कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर नाला होना चाहिए और वो कम्युनिटी पॉन्ड होना चाहिए, लेकिन उसमें लॉजिक वाली तो कुछ नहीं है। और दूसरा है डाटा। तो जैसे कि नॉर्मल सा हम जो प्लानिंग कर रहे थे सिर्फ मुंह में बात कर रहे थे, हम वो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में होना चाहिए, तो उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडिंग होने चाहिए। तो ये जो डाटा आ रहा था लेकिन कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा था, जैसे कि ये डीपीआर में हो रहा है। तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरा है, तो ये जो डीपीआर हमने हमारा जो ग्राम सभा हो रहा था अक्टूबर 2 को, अभी 26 जनवरी का हुआ, हमारा 2 जीबी का ऑलरेडी खत्म हो चुका था। और दूसरा बात है, ये जो हमने बनाया वो पूरा का पूरा ऑफलाइन बना हुआ है, क्योंकि वो नगीरा वाला साइड है जहां पर पीबीटीजी रहते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम भी मैम आपके साथ थोड़ा सा बात हुआ, वो इक्विटी के बारे में आप जो बता रहे थे, मैंने भी बहुत चीज बोला था कि एक हमलेट में हम देख रहे हैं कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लेकिन एक हमलेट के लिए बहुत सारी रिसोर्स है। तो उस डीपीआर में वो मेंशन, वो विजिबल हो रहा है। तो इसको जब हमने प्लानिंग प्लानिंग में कर दिया, और 26 जनवरी को इस प्लानिंग को हम प्रेजेंट किया ग्राम सभा में, जहां पर पीओ थे, सरपंच थे, क्योंकि जो भी प्लानिंग गांव से आ रहा था, कहाँ पर चेक डैम होने वाला था, कहाँ पर एनआरएम स्टागर्ड स्ट्रेन, क्योंकि ये तो एनआरएम बेस है। तो हमने प्लानिंग प्रेजेंट किया, और स्ट्रक्चर भी 2 दिन में हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा सा जेहेतु ऑफलाइन में था तो कुछ चेंजेस होने वाला था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहीं पर नहीं आ रहे थे, इसलिए कल जलन से साथ ऑलरेडी फाइनल हो चुका है हमारा। तो 2 दिन में वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया डीपीआर। तो आगे लगे इसको कैसे भी प्रेजेंट करेंगे। पहला यही है कि अभी जीपीडी पे आ रहा है, तो जीपीडी अभी तो शुरू होने ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अभी ई ग्राम स्वराज में एंट्री होने वाला है पोर्टल में। तो अभी वीडियो के साथ एक फाइनल प्रेजेंट करेंगे इसको लेके, कि यहाँ का आपका गांव के लोग से डिमांड आया है, और डिमांड के साथ क्या क्या लॉजिक है। क्योंकि यहाँ पर हमने जब डीपीआर प्रोसेस में फॉलो किया था ना ऑफलाइन में, लास्ट में एक आता है जस्टिफिकेशन। तो जो स्ट्रक्चर बना रहे थे उसमें क्या जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि स्टैगर्ड एक्सचेंज हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कहीं पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, कहीं पर पौधा कम हो गया तो स्टैगर्ड एक्सचेंज होने के बाद पौधा भी उठ सकता है। तो ऐसा वाला लॉजिक गांव के तरफ से कुछ आया, डिस्कशन में आया, तो उसको हम भी वहां पर ओडिया भी मेंशन किए हैं। तो पहला प्रायोरिटी है, हम उसको प्रेजेंट करेंगे वीडियो के पास। और दूसरा, ये तो एनआरएम बेस है, तो आगे जाके जहां पर एफआरएम मिल चुका है वहां पर सीएफआर मैनेजमेंट भी होगा। तो हम एसडीएलसी में फरवरी में हमारा एसडीएलसी है पालोड़ा में, उसको हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं प्रेजेंट करने के लिए। वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है और सब कलेक्टर भी है, उसको हम प्रेजेंट करेंगे कहीं पे भी, तो कहाँ कन्वर्जेंसी हो सकता है क्या। तो ये थोड़ा सा प्लानिंग वाला एंगल है। और अच्छी बात है कि जो आदिकर्म जोगी, अभी बहुत मेरे साथी लोग बता रहे थे आदिकर्म जोगी हम भी वहां पर कर रहे थे, लेकिन सब डाटा आ रहा था, लेकिन वो लॉजिकली हम उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे लाए, वहां पर फील्ड विजिट कैसे करेंगे, वहां पर नहीं हो रहा था। अभी इस कॉमन्स करने में सारे का सारे प्लान है, और पूरा प्रूफ के साथ है, फोटो भी है हमारे पास, और बाकी लैटिट्यूड लैंगिट्यूड भी है, और डायमेंशन भी है। गांव के लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर रहना चाहिए, ये होने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये डीपीआर ऑलरेडी हमारा पालड़ा ओफीएस का प्लानिंग है, इसको हमने प्लान कर लिया, और वीडियो के साथ डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी एक लेवल के साथ बातचीत हो गया। और दूसरा, हम कहीं पे सीएफआर मैनेजमेंट के थ्रू इसको प्रेजेंट करेंगे, नहीं तो वहां पर कहीं कहीं जगह पे जैसे कि एग्रीकल्चर का हो गया, हॉर्टिकल्चर का कहीं कहीं स्कीम आ रहा है, कि कहीं पे जैसे कि आदिकर्म जोगी में। तो प्लान है, तो आगे जाके इसको थोड़ा सा देखेंगे। और इक्विटी के एंगल में बहुत सारे चीज हमको विजिबल हो रहा है कि किस हैमलेट में है, किस हैमलेट में नहीं है, तो इसको डिपार्टमेंट के सामने भी हम रख सकते हैं। जी, ठीक है। थैंक यू जगन जी। नहीं, ये काफ़ी हेल्पफुल था जो आपने पूरा प्रोसेस बताया कि आप अम, पूरा डीपीआर का प्रोसेस शुरू करने से पहले ही एक बार
बीडीओ से जाके मिलते हैं कि आपका क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा और इसकी क्या ज़रूरत है, ताकि वो स्टार्टिंग से लूप में रहें। तो ये काफ़ी हेल्पफुल था। ठीक है, आई थिंक वी आर ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑन टाइम। तो सभी को थैंक यू आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। कॉमन्स कनेक्ट के साथ यही हमारा थोड़ा इंटेंशन है कि पूरा जो प्रोसेस है वो डीपीआर तक सीमित ना रहे, उसके बाद का प्रोसेस भी हम कैसे स्ट्रेंथन कर पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड्स हैं, स्पेशली जो कम्युनिटी डिमांड्स हैं, और अगर कोई वल्नरेबल कास्ट कम्युनिटीज़ हैं तो उनकी इंडिविजुअल लैंड डिमांड्स भी जो हैं उस पर अच्छे से फोकस रहे, वो फॉर्मली ट्रैक हो सके, स्टेबल्स खुद उन्हें ट्रैक कर सके कि कौन सी डिमांड्स अप्रूव हुई हैं, जो नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई हैं, उनको फॉलो अप कर सकें। तो ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल था आज का डिस्कशन भी। और हम देखेंगे कि कॉमन्स कनेक्ट में हम और क्या चेंजेस ला सकते हैं, कि उसका जो डीपीआर आता है उससे पूरा प्रोसीजर स्मूदन हो सके। ठीक है, किसी का और कोई सवाल या कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? अगर नहीं तो हम मैडम, हाँ जी, शैलेंद्र कुमार प्रधान, एफएस अनुगुल से। आई वांट हाँ टू प्रेजेंट जी, some things. जो जगन जी, what Jagan ji is presented. Besides this, we will follow the same method in Kishwanagar block. In this year we take 3 GPs. Under the before starting the planning through Common Connect app, we method followed from Panchayat Raj Department block to GP. And also main thing, we are planning in a village. At that time we plan resource mapping through sahi wise, and after resource mapping, club planning, livelihood and planning is the last phase. Then also before planning we take the support of CLAT app, and which it shows the regarding the water recharge, discharge, storage. These steps also include in the DPR. And lastly, after completion of the activity or planning, through email, the DPR is storage. And also the activity and the process through was presented in the Gram Sabha. The Sarpanch, PO, ADO, PRI members and villagers also accepted this. And then they will include integrated in the GPDP. These are the methods we follow at Angul through Common Connect app. Thank you. जी, थैंक यू शैलेंद्र जी। ठीक है, और किसी के कोई सवाल या कोई एक्सपीरियंस? हाँ मैम, मैं सपोर्ट से बोला था, क्योंकि ये कॉमन ग्राउंड इनिशिएटिव प्रोग्राम चल रहे हैं जो लिविंग लैंडस्केप के द्वारा, हाँ तो जी, उसमें कॉमन कनेक्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करके लार्जर स्केल में हम लोग उसको इनिशिएट कर सकते हैं, ये टॉप लेवल पर थोड़ा आप लोग प्लान करने की जरूरत होगी। थोड़ा आप और डिटेल में बताइए। जैसे कॉमन ग्राउंड इनिशिएटिव प्रोग्राम जो चल रहे हैं लिविंग लैंडस्केप के साथ, तो उसमें आपका भी हाँ जी, कॉमन कनेक्ट भी पार्टनर है, तो उस लेवल पे जी, कैसे इस प्रोग्राम को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो लिविंग लैंडस्केप के साथ कॉमन ग्राउंड इनिशिएटिव प्रोग्राम में, वो मैक्सिमम कैसे हो सकता है मैम, इस पर थोड़ा टॉप लेवल पे आप लोगों को डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी। जी मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी को थैंक यू। अगर और किसी का और कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहेंगे तो हम आज का कॉल एंड कर सकते हैं। फरवरी में हम दोबारा मिलेंगे एक नई थीम के साथ। आप में से कई लोगों की ये भी डिस्कशन से निकल कर आया है, काफियों के साथ भी
डेटा के ऊपर हम थोड़ी और चर्चा कर सकते हैं कि जो हम कॉमन्स कनेक्ट में और KYL पर भी जो डेटा दिखाते हैं, जो जियोस्पेशियल लेयर्स दिखाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन सही मानने में कैसे करें, ताकि जैसे आप में से कई लोग कह रहे थे कि CRPs की जो ट्रेनिंग करनी चाहिए कि वो डेटा ड्रिवन DPR कैसे बना पाए, उसके लिए डेटा को समझना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो हम एक कॉल उस पर भी रखेंगे जहाँ पे जो भी लेयर्स हैं हम उसका अच्छे से इंटरप्रिटेशन पे भी डिस्कशन करेंगे CRPs के साथ। तो आई थिंक वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वी कैन एंड टुडेस कॉल। आई जस्ट स्टॉप